بلٹن کے آغاز میں ہم خبر دیں آپ کو، ملتان کے سب سے بڑے تاریخی مقام قلعہ کوہنہ قاسم باغ کی ڈیولپمنٹ کے لیے مینجمنٹ پلان تیار کر لیا گیا ہے۔ اطراف میں فصیل کی تعمیر اور مرمتی کاموں کے لیے ماہرین آثار قدیمہ کی ٹیمز تشکیل دی جائیں گی۔ جی ہاں، آپ کو بتائیں ملتان کے سب سے تاریخی مقام قلعہ کوہنہ قاسم باغ کی ڈیولپمنٹ کے لیے مینجمنٹ پلان تیار کر لیا گیا ہے۔ قلعے کے اطراف میں فصیل کی تعمیر اور مرمتی کاموں کے لیے ماہرین آثار قدیمہ کی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ مزید بات کریں گے سہیرا طارق سے۔ سہیرا، بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، قلعہ کوہنہ قاسم باغ ملتان شہر کا سب سے زیادہ تاریخی مقام جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے۔ تقریباً 5000 سال پرانی تاریخ رکھنے والا ملتان شہر، اور یہاں پر جو قلعہ موجود ہے اور قلعے کے اندر جو درگاہیں موجود ہیں، ان کی بحالی کے لیے ضلعی انتظامیہ نے ایک سماجی تنظیم کے ساتھ مل کر ڈیولپمنٹ ورک جو ہے وہ شروع کر لیا ہے۔ اسی حوالے سے قلعے کی رینوویشن کے حوالے سے ایک ڈیولپمنٹ سائٹ جو ہے مینجمنٹ پلان اس کا وہ تشکیل دیا جا چکا ہے، جو کہ قلعہ کوہنہ قاسم باغ کی فصیل ہے، جو کہ مختلف ادوار میں مختلف حملوں میں جو ہے وہ بوسیدہ ہو گئی تھی، ٹوٹ گئی تھی اور اب موجود نہیں ہے وہ فصیل۔ اس فصیل کو قلعے کے ارد گرد 4 دیواری بنانے کے حوالے سے جو ہے وہ کام کیا جائے گا۔ درگاہ حضرت بہاؤالدین ذکریہ اور درگاہ حضرت شاہ رخ نے عالم کی تزئین و آرائش اور قلعے کے ارد گرد جو خوبصورتی کا پلان ہے اس پر کام کیا جائے گا۔ اسی حوالے سے ورک شاپ جو ہے اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے نجی کمپنی کی جانب سے، جس میں تمام جو ماہر آثار قدیمہ ہیں وہ بھی موجود ہوں گے، اور آرکیٹیکچر ورک کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی جائے گی۔ پہلے مرحلے میں پلان بنایا جائے گا کہ قلعہ کوہنہ قاسم باغ میں کن کن چیزوں کی رینوویشن ہونی چاہیے، اس کے بعد عملی طور پر کام کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جائے گا۔ بہت شکریہ سہیرا، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ جنوبی پنجاب کے لیے اچھی خبر ہے کہ میپکو نے زرعی صارفین کے واجبات کی ادائیگی کی تاریخ میں 31 دسمبر تک توسیع کر دی ہے۔ 31 دسمبر تک یکمشت واجبات کی ادائیگی پر LPS سرچارج کو معاف کر دیا گیا ہے۔ ملتان میں جنوبی پنجاب کے کاشتکاروں کے لیے اچھی خبر سامنے آئی ہے، جہاں پر میپکو کے زرعی صارفین کے واجبات کی ادائیگی کی تاریخ میں توسیع کر دی گئی ہے۔ دسمبر تک واجبات کی ادائیگی پر LPG سرچارجز معاف کر دیے گئے ہیں، جبکہ پالیسی سے نادہندہ زرعی ٹیوب ویل صارفین کو لاکھوں روپے فائدہ ہوگا۔ صارفین کو متعلقہ سب ڈویژنل آفس سے رجوع کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ 31 دسمبر تک واجبات کی ادائیگی پر LPS سرچارج معاف ہو جائیں گے۔ جنوبی پنجاب کے کاشتکاروں کے لیے اچھی خبر، میپکو کے زرعی صارفین کے واجبات کی ادائیگی کی تاریخ میں توسیع کر دی گئی ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں گوہر رحمان سے۔ جی گوہر، اپڈیٹ کریے گا۔ جی بالکل، جنوبی پنجاب بلکہ میپکو کے زرعی صارفین کے حوالے سے اچھی خبر یہ ہے کہ میپکو کی جانب سے جو کاشتکار ہیں انہیں بڑی ریلیف دی گئی ہے، بڑا ریلیف یہ دیا گیا ہے۔ میپکو کی جانب سے ایک دفعہ پھر جو زرعی صارفین ہیں ان کے واجبات کی ادائیگی میں 31 دسمبر تک کی توسیع کر دی گئی ہے۔ اس دوران جتنے بھی جو زرعی کاشتکار ہیں وہ اپنے بقایا جات جو ادا کرائیں گے اس میں انہیں جو LPS جو چارجز ہے اس کے حوالے سے چھوٹ دی جائے گی، اور جو بل کے حوالے سے جو اضافی چارجز ہیں وہ بھی ادا نہیں کرنے پڑیں گے۔ اس سے جو ہے میپکو کے زرعی ٹیوبویل جو صارفین ہیں تو انہیں لاکھوں روپے کا فائدہ ہوگا، اور یہ بڑی آفر ہے میپکو کی جانب سے جو ہے انٹروڈیوس کرائی گئی ہے تمام تر جو زرعی صارفین ہیں جنوبی پنجاب بھر کے، کہ وہ اپنے تمام جو بقایا جات ہیں وہ جمع کروا سکتے ہیں۔ جی، زرعی صارفین کو لاکھوں کا فائدہ ہوگا۔ گوہر، شکریہ۔ ابھی کچھ بات کر لیں مہنگائی پر۔ ریلوے نے کرایوں کے بعد سامان کی ترسیل پر بھی کرایہ بڑھا دیا ہے۔ سامان کی ترسیل پر 10% کرایہ بڑھانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ زائد کرایوں پر عمل درآمد 1 نومبر سے ہوگا۔ مزید بات کریں گے محسن الملک سے۔ محسن، بتائے گا کتنا کرایہ بڑھایا جا رہا ہے؟ جی، پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے بعد آفٹر ایفیکٹس آنے کا سلسلہ شروع ہے، اور اس وقت ریلوے کے کرائے بڑھانے کے بعد اب باری ہے گوڈز کی، اور گوڈز کے حوالے سے بھی کرائے بڑھانے کا نوٹیفیکیشن باقاعدہ طور پر پاکستان ریلوے نے جاری کر دیا ہے، جس کے اندر لکھا گیا ہے کہ 10% جو کرائے ہیں وہ بڑھائے جائیں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت گوڈز کے حوالے سے جو سامان ترسیل کرنے کے حوالے سے یہاں پر مینیجر ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ جبران صاحب، بتائیے گا کتنے % یہ اضافہ کر رہے ہیں اور کب سے یہ اضافہ؟ 10% انکریز کیا ہے انہوں نے پارسل اور لگیج ریٹس میں، اور یہ لیٹر ایشو ہوا ہے 26 اکتوبر 2021 کو، اور یہ نافذ العمل ہوگا 1 نومبر 2021 سے۔
जिसमें किराए जो है वो 10% तमाम रेट्स के बढ़ जाएंगे। अच्छा, अब जैसे एक मोटरसाइकिल है, पिंडी भेजना है, पहले कितनी पैसे थे और बढ़ने के बाद कितने हो जाएंगे? रावलपिंडी पहले एक मोटरसाइकिल के मुल्तान से रावलपिंडी का किराया था 900 रुपये, अब ये किराया बढ़कर 990 रुपये हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से 10% जो है वो किराए बढ़ाए गए हैं। और इसी तरीके से जो बल्क में सामान भेजने वाले लोग हैं वो पाकिस्तान रेलवे से अक्सर जो तरसीली सामान भेजते थे, उनके लिए भी अब रेट जो है वो बढ़ गए हैं। जो लाखों रुपए का बिजनेस करते थे वो अब 10% ऊपर देंगे, और इस वजह से इस फैसले को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है 1 नवंबर से। लेकिन इस पर जो तरसील कंपनियां या फिर रेलवे से सामान भेजने वाले लोग हैं वो काफी ज्यादा है। शुक्रिया मोहसिन, आपने अपडेट किया। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की तजवीज़, मियाँवाली के शहरी पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ का सुनकर चीख पड़े हैं। उनका कहना है कि पेट्रोल की कीमत में मज़ीद इजाफा आवाम पर जुल्म है। मज़ीद जान लेते हैं अख्तर मजाज से। अख्तर, क्या कहते हैं शहरी? बिल्कुल, पेट्रोल की कीमत में इजाफे का सुनकर मियाँवाली के जो शहरी हैं शदीद परेशान हो चुके हैं, और इनका क्या कहना है इस हवाले से इनसे बात करते हैं। तजवीज़ भेज दी गई है पेट्रोल को महंगा करने की, 8 रुपए पेट्रोल फिर महंगा हो रहा है। क्या कहेंगे इस हवाले से, हुकूमत क्या कर रही है? अस्सलाम वालेकुम भाई, असा ये चाहते हैं कि साडा पेट्रोल सस्ता होवे, बिजली सस्ती होवे, उस तो बाद खाद सस्ती होवे। असा मजदूर आदमी हाँ, कम अज कम ये सोचा वने कि मजदूरी दे रहे इंसान 500 रुपये मजदूरी हो, पेट्रोल पूरा करे, चीनी पूरी करे, घी पूरा करे, क्या चीज पूरी करे, और कोई मियाँवाली के कोई मसले हल नहीं हो रहे। मियाँवाली के रोड सारे पट्टे हुए, कोई भी बंदा आंदा है, मरीज उल्टा डबल मरीज थी कि जाता है घर। मेहरबानी होसी तो आदि मियाँ जी, पेट्रोल की कीमत ना बढ़ाई जाए। एक नौजवान भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप क्या समझते हैं नौजवान इस हवाले से? सर, इस बात से हम ये कहते हैं कि भी अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी और महंगाई ज़्यादा होगी, पेट्रोल बढ़ता है तो साथ में सोना भी बढ़ जाता है, डॉलर की कीमत में इजाफा हो जाता है। हम चाहते हैं कि इमरान खान साहब हमारी तरफ गौर करें। गरीब अवाम कहाँ पे जाए? जो मजदूरी करने वाला बंदा है, जो रक्षा चलाने वाले, उसके लिए क्या होगा? 30 रुपये आज सवारी होगी है, कल 50 रुपये कर देंगे। हम गरीब अवाम किधर जाएंगे? जिसने रोज़ मजदूरी करनी है, जिसने रोज़ का ताज़ा कमाना है, 500 रुपया मजदूरी है। अब सोचें कि हम लोग कहाँ पे जाएंगे। और ये रोडों की हालत आपके सामने है कि ना कोई मजदूरी कर सकता है, ना इसके अलावा कोई ऐसा शिद्दत से हम। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि पेट्रोल की कीमत भी आए रोज बढ़ती जा रही है, उसके साथ साथ नौजवानों को, लोगों को मजदूरी के मौके भी अवेलेबल नहीं है, लोगों को मजदूरी भी नहीं मिल रही। लोगों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि ये जुल्म है, और लोगों ने पेट्रोल की कीमत में इजाफे की को तजवीज़ जो है तो उसको मुस्तरद कर दिया है। इनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा ना किया जाए, बल्कि जो रेट है कीमतों में कमी का मुतालबा किया जा रहा है। अख्तर, आपका शुक्रिया। महंगाई, बेरोजगारी और सुबह बनाओ मुहिम, वसीम नेशनल तहरीक का बड़ा ऐलान। 1 नवंबर से जनूबी पंजाब में लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। मजीद तफसीलात जानेंगे अमजद मलिक से। जी अमजद। जी बिल्कुल, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जहां पे दीगर जमातें हैं एहतजाज कर रही हैं, पीडीएम पीपल्स पार्टी, तो वहीं पे मुल्तान से जनूबी पंजाब के अंदर वसीम नेशनल तहरीक ने बाकायदा तौर पे लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। 1 नवंबर से लॉन्ग मार्च बाकायदा वसीम नेशनल तहरीक करेगी। इस हवाले से तैयारियां जो है उनको हतमी शक्ल दी जा रही है। ये लॉन्ग मार्च कितने दिनों के ऊपर मुहित होगा, हम बात करेंगे। हमारे से बात करने के लिए मौजूद हैं चेयरमैन वसीम नेशनल तहरीक आसिफ खान साहब, बताइएगा। वसीम नेशनल तहरीक सराइकी वसेब की बहुत बड़ी एक जमात है, उभरती हुई जमात है, और नौजवानों के हवाले से इसके साथ जुड़त जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। इसकी वजह बुनियादी तौर पे ये है कि सराइकी वसेब पूरे पाकिस्तान की कौमी इकॉनमी में 60% कौमी पैदावार में हिस्सा डालता है। उसके बावजूद हमारी 70% आबादी जो है गुर्बत की लकीर से नीचे है, और इस गुर्बत की लकीर के सूरत हाल में लोगों को रोटी, कपड़ा और इलाज, ये तीनों सहूलतें मुयसर नहीं है। अच्छा, हमारा जो लॉन्ग मार्च है वो 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। 1 नवंबर से मुल्तान से स्टार्ट होगा। तकरीबन हर शहर के अंदर ये जो लॉन्ग मार्च है जाएगा और वहां एहतजाज किया जाएगा हुकूमत की गलत पॉलिसियों के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ। और बाकायदा 1 नवंबर को मुल्तान से ये जो इनका कारवां है यहाँ से शुरू होगा, जिसको बाकायदा लीड करने वाले हैं वो चेयरमैन आसिफ खान होंगे वसीम नेशनल तहरीक के। और इसमें बड़ी तादाद में कारकुनों को भी आने के
اپیل کی گئی ہے، باقاعدہ مہم جو ہے وہ جاری کی گئی ہے، میٹنگز کی جا رہی ہیں تاکہ اس لانگ مارچ کو امجد ہمارے ساتھ موجود ہے آپ کا۔ لودھرا میں پیٹرولیم مصنوعات پر پروفٹ مارجن کم ہونے پر آل پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کا احتجاج۔ ایسوسی ایشن کے عہدیداران کا 5 نومبر سے ملک گیر ہڑتال کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں مشتاق بھٹا۔ جی مشتاق۔ پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن ضلع لودھرا کے عہدیداران اس وقت پریس کلب لودھرا کے باہر احتجاج کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کئی دہائیوں سے پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت پر جو مارجن ہے وہ نہیں بڑھایا گیا، جس کی وجہ سے ان کے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں۔ ان کا کیا مطالبہ ہے، میں انہی سے بات کروں گا۔ آپ بتائیں بھی کیا مطالبہ ہے آپ کا؟ جی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ کے توسط سے ہم یہاں پہ ٹھہرے ہیں اور اپنا بیان جو دے رہے ہیں۔ ہماری حکومت وقت سے یہ مطالبہ ہے اور اپیل ہے کہ ہمارا روزگار جو ہے وہ نقصان میں جا رہا ہے، ہمارا مارجن جو ہے کئی عرصے سے کئی سالوں سے نہیں بڑھایا گیا، لہٰذا ہم لوگ نقصان میں جا رہے ہیں اور ہمارے پیٹرول پمپ بند ہونے پر آ چکے ہیں۔ ہماری حکومت وقت سے یہ اپیل ہے، مہربانی کریں، اس کاروبار کے ساتھ لاکھوں کروڑوں لوگوں کا روزگار منسلک ہے، ہمارے کاروبار کو محفوظ کریں، ہمارا مارجن بڑھایا جائے۔ جی آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پریس کلب لودھرا کے شکر گزار ہیں جنہوں نے آج ہمارا یہ پروگرام بنایا ہے۔ یہ اپنے پیٹرول پمپ عرصہ دراز سے ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، کمیشن نہ بڑھانا، اور اس کے بعد عرصہ دراز آل پاکستان یونین نے ہمارا کال دی ہے 5 نومبر کو۔ اگر یہ ہمارے کاروبار کے لیے مارجن یا اگر یہ نہیں کریں گے تو ہم 5 نومبر کو ہڑتال کریں گے۔ جی بالکل، اگر مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو 5 نومبر سے پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت ایسوسی ایشن کے عہدیداران کا کہنا ہے کہ بند کر دی جائے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت احتجاج کیا جا رہا ہے۔ آپ کا شکریہ۔ ادھر خانیوال میں مہنگائی سے ستائے عوام کا ڈسٹرکٹ پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ ہوا، جبکہ ریلی بھی نکالی گئی۔ مزید بات کریں گے ندیم مغل سے۔ ندیم بتائے گا ریلی کے حوالے سے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کی ایک وجہ قرضے بھی ہیں، اور آج ڈسٹرکٹ پریس کلب کے باہر جو ہے وہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف جو احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے، جس پر پاکستان کے چڑھائے گئے قرضوں کے نامنظور کے نعرے بھی لگائے گئے۔ مزید ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں شریف جی۔ بتائیے گا کہ آج کا احتجاجی مظاہرہ بڑھتی ہوئی مہنگائی اور قرضے کیا کہیں گے؟ دراصل جو حکومتی قرضے ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے حکومت جو مزید قرضے لے رہی ہے اس پر یہ عوامی رد عمل ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ہی جو مہنگائی ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں 10 کروڑ سے زیادہ عوام جو ہیں وہ غربت کی لائن سے نیچے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں، اور اگر حکومت پچھلے قرضوں کو اتارنے کے لیے ہی مزید قرضے لیتی رہے گی تو اس طرح عوام کے جو مسائل ان میں اضافہ ہوگا اور غربت میں اضافہ ہوگا۔ اس لیے آج ہم باہر نکلے ہیں تاکہ حکومت سے یہ مطالبہ کر سکیں کہ وہ بیرونی قرضوں کو معاف کروانے کے لیے جو ہے اقدامات کرے، تاکہ عوامی خدمات میں اضافہ ہو سکے اور عوام پر جو بوجھ بڑھ رہا ہے وہ کم کیا جا سکے۔ جی بالکل، عوام پر جو بوجھ بڑھ رہا ہے وہ کم کیا جا سکے، ورنہ مہنگائی کا طوفان جو ہے وہ مزید بڑھے گا۔ جی ٹھیک ہے ندیم، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ مہنگائی کی چکی میں پستی عوام پر مہنگائی کا مزید بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ گھی اور پکوان تیل کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر سے اضافہ ہو چکا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں عاشق حسین سے، اپڈیٹ بتائیے گا۔ جی بالکل، مہنگائی کی چکی میں پستی عوام پر مزید بوجھ جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے، کیونکہ حکومت نے گھی اور خوردنی آئل کی قیمتوں میں جو ہے وہ 5 سے 10 روپے اضافہ کر دیا گیا ہے۔ روز بروز بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے شہری شدید پریشان ہے۔ اس وقت بھی میں ایک کریانہ شاپ پر موجود ہوں، جہاں پر شہری خرید و فروخت کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان سے بات کریں گے۔ جی بتائیے گا، کیا کہنا چاہیں گے؟ گھی کی قیمتوں میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے۔ سر ہر چیز مہنگائی ہے، ہم کدھر جائیں؟ غریب بندے ہیں، ایک ٹائم روٹی نہیں مل رہی کھانے کا، ہم کیا کون سی جگہ پر جائیں؟ ہر چیز کو مہنگائی ہے۔ سر مہربانی کرو، کوئی غریبہ کے ترس کرے، ہم تو یہی کچھ کہہ سکتے ہو، تو کچھ کہہ سکتے ہیں۔ جی آپ کیا کہنا چاہیں گے بڑھتی ہوئی مہنگائی؟ آٹا مہنگا ہے اور گھی بھی مہنگا ہے، غریب عوام کہاں جائے سر؟ اتنی مہنگائی ہے، کوئی جان چھوڑے ہماری۔ جی جیسا کہ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت جو ہے وہ مہنگائی کر رہی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر حکومت جو ہے مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکتی تو حکومت جو ہے غریب عوام کی جان چھوڑ دے، کیونکہ گھی اور آٹے کے ریٹ جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب گھی کی قیمتیں اور خوردنی آئل کی جو قیمتیں ہیں وہ 5 سے 10 روپے بڑھا دی گئی ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کا احتجاج کرتے ہوئے کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ جو ہے وہ واپس لے۔ اور صحیح، عاشق حسین آپ کا شکریہ۔ ناظرین، مہنگائی نے غریب کا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ علی پور میں روز بروز مہنگائی سے دہاڑی دار طبقہ بھی پریشان ہو چکا۔ مزید بات کریں گے اس حوالے سے علی حسن سے۔ جی علی بتائیے گا۔ بالکل، روز بروز بڑھتی ہوئی مہنگائی سے شہری پریشان ہیں۔ چینی کا ریٹ جو سرکاری 90 روپے تھا وہ اب مارکیٹ میں 120 روپے کلو ہو گیا ہے۔ گھی جو
35 रुपए किलो बिक रहा था, वो घी जो है 360 रुपए किलो में बिक रहा है। जो बढ़ती हुई महंगाई से शहरी शदीद परेशान है। इस टाइम मेरे साथ चंद शहरी मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते। जी बताइए कि घी भी महंगा हो गया है, चीनी महंगी हो गई है, आपका हुकूमत से क्या मुतालबा है? जी जनाब, अगर इसी तरह हो तो फिर आवाम तो मर ही जाएगी भूखी। अगर इसी हालात में अगर जैसे गुजर रहे हैं, जैसे मैं आज चीनी लेने के लिए आया तो चीनी 120 रुपये हो गई है, 120 रुपये दे रहे हैं। घी लेने के लिए तो घी 360 रुपये हो गया है। इसी तरह जो गरीब आवाम है, गरीब तबका है, जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं? वो तो गरीब बेचारे मर ही जाएंगे जिनकी 500, 600 या 700 दिहाड़ी है। अगर बिलफर्ज उनकी 2 दिन या 3 दिन अगर उनकी दिहाड़ी नहीं लगती तो फिर गरीब आवाम क्या करेगी? वो गरीब अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? वो अपने बच्चों को बस भूखा ही सुलाएंगे। इसी तरह तो खुदकुशी कर लेते हैं लोग, अपने बच्चों को मार देते हैं। अब खुदकुशी कर रहे हैं। हमारा ये हुकूमत से मुतालबा है कि गरीब अवाम को रिलीफ दिया जाए, गरीब अवाम के लिए कुछ सोचा जाए। अगर इसी तरह रह गया तो अवाम नहीं बचेगी। मेहरबानी करें आप। जी बिल्कुल, शहरी से आपने सुना है, उनका यही कहना था कि हुकूमत से उनका ये मुतालबा है कि गरीबों को रिलीफ दें और महंगाई। बहुत शुक्रिया अली, आपने अपडेट किया। अगले तालीमी साल 2021 और 22 में पूरे निसाब से इम्तिहान लिया जाएगा। इंटर और मैट्रिक के तलबा और तालिबात को स्कूल्स और कॉलेजेस में पूरी किताबें पढ़ाई जाएंगी। पंजाब करिकुलर एंड टेक्स्ट बुक की जानिब से मरासला जारी कर दिया गया है। 32वीं IPEMC में तमाम स्टेक होल्डर्स का मुतफिका फैसला हुआ। फैसला तमाम स्कूलों और कॉलेजेस के खुलने और कोरोना केसेस की कम शरह को मद्देनजर रखते हुए किया गया। मैट्रिक और इंटर के सवालिया पर्चे पूरे सिलेबस से बनाए जाएंगे। मुल्तान में सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन। सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इलेक्शन का आगाज हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के सालाना इलेक्शन में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 3150 है। मजीद बात करेंगे माहिर इमरान से। जी माहिर बताएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट बार के जो इंतखाबात हैं उस हवाले से पोलिंग का अमल जो सुबह से जारी है और हम देख रहे हैं मुल्तान में भी काफ़ी गहमा गहमी है। मुख्तलिफ जो सपोर्टरान हैं अपने अपने उम्मीदवारों के हक में जो है यहाँ पे कैंपेन भी कर रहे हैं और पोलिंग का अमल भी जारी है। मुल्तान में 196 वोटर जो हैं आज हक के राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुकम्मल तौर पर 3150 वोटर जो हैं वो इसमें शामिल हैं। जो सदारत के उम्मीदवार हैं सरदार मोहम्मद लतीफ़ खान खोसा और एहसन बून के दरमियान कांटेदार जो मुकाबला है मुतवक्के है। अब सरदार लतीफ़ खान की सपोर्ट में क्या कहना चाहेंगे कि क्या पोजीशन है मुल्तान में? 1981 में लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का जब क़याम हुआ तो पहले सदर जो है वो इलेक्ट हुए थे और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी उनके इस बार के लिए बहुत ज़्यादा खिदमात हैं। तो इस इलेक्शन में भी यकीनन मुल्तान बार उनको वो इज्जत और अकराम से नवाजेगी। सर बताइएगा क्या मुल्तान में आपकी पोजीशन है? अल्लाह के फजल करम से लतीफ़ खान खोसा साहब जो हैं वो मुल्तान से इलेक्शन जीतेंगे क्योंकि उसकी 2 वजूहत हैं। एक तो वो सीनियर लॉयर हैं और मुकम्मल लॉयर है और दूसरा ये कि उनका ताल्लुक जो है मुल्तान से। जी मुल्तान से ताल्लुक है। पुरअज़म है अपनी अपनी जीत के लिए। यहाँ पे एहसन बून के जो सपोर्टरान हैं उनसे हम जानेंगे। इंडिपेंडेंट ग्रुप ना सिर्फ मुल्तान में बल्कि पूरे मुल्क में तमाम पोलिंग स्टेशन से इंशाल्लाह हमारी कामयाबी होगी और शाम को हम आपको एक खुशखबरी देंगे। तमाम तौर पोलिंग का अमल जो है वो जारी है। शाम 5 बजे तक पोलिंग इसी तरह से जारी रहेगी। मुल्तान से 196 वोटर्स आज हक के राय दही के इस्तेमाल कर रहे हैं। जी माहिर इमरान, आपका शुक्रिया। उधर सुप्रीम कोर्ट बार ने बहावलपुर के वकला भी इंतखाबी अमल में हिस्सा ले रहे हैं। सीनियर वकला की जानिब से अपने अपने उम्मीदवार की जीत के दावे किए जा रहे हैं। मजीद बात करेंगे महमूद जहीर से। महमूद बताइएगा क्या अहवाल देख रहे हैं आप? जी इस वक्त हम मौजूद हैं बहावलपुर में जहां पर सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात सीनियर वकला की जानिब से जारी अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे साथ सीनियर वकील हैं मुमताज मुस्तफा साहब। सर बताइएगा किसे जितवा रहे हैं आज? देखें, वी बिलीव इन डेमोक्रेसी और इंशाअल्लाह सरदार लतीफ़ खोसा प्रोमिनेंट एंड दी बेस्ट लॉयर ऑफ पाकिस्तान हैं। प्रोफेशन के लिहाज से उनका कोई मैच नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं लॉयर्स के ज़मीर से कि वो एक बहुत बड़े प्रोफेशनल के हक में अपने वोट का एक्सरसाइज करेंगे। सरदार लतीफ़ खोसा साहब के हवाले से इस वक्त यहाँ पर दावा किया जा रहा है जीत का, लेकिन हम जब दूसरे ग्रुप में आते हैं तो यहाँ पर मेरा ख्याल है दावा किया जाएगा एहसन बून के हवाले से। तो मैं चाहूंगा कि आप हमारा थोड़ा साथ दें। बताइएगा क्या देख रहे हैं आज आप? एहसन बून साहब जीतेंगे और अल्लाह के फजल करम से हम सारे दोस्त इकट्ठे हैं और पीरा साहब भी हमारे साथ हैं,
ताहिर मुफ्ती साहब भी हमारे साथ हैं, मेरा ग्रुप भी इनके साथ है सारा। अल्लाह का एहसान होगा। अल्लाह का एहसान होगा, जरूर जीतेंगे जी। पीरजादा साहब साबिक सदर है हाईकोर्ट बार के, हमारे साथ जी बताइएगा। इंशाअल्लाह ताला जी एहसन बून साहब का जो है वो दोस्तों के साथ, और खकवानी साहब हो गए, औरंगजेब साहब हो गए, मुफ्ती साहब हो गए, सब दोस्त इंशाअल्लाह ये दोस्तों का इलेक्शन होता है, तो इंशाअल्लाह ताला एहसन बून साहब अच्छी लीड से जीतेंगे यहाँ। इंशाअल्लाह ताला जीतेंगे। हमारे साथ साबिक जज है हाई कोर्ट के जनाब औरंगजेब साहब। औरंगजेब साहब बताइएगा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात विन करके लोग आते हैं, किस हद तक ये वकला के लिए या आप लोगों के लिए फाल किरदार अदा करते हैं बेंच और असल में तो काम इनका यही है कि बेंच और बार के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनको बेहतर बनाया जाए और वर्किंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट की बेहतर की जाए। अगर उनको कोई बात कन्वे करने वाली बॉडी नहीं होगी तो सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग जो है वो बेहतर नहीं हो सकती। इन बॉडीज का मतलब ही यही होता है कि लिटिगेंट्स के मसाइल को कम किया जाए और उसके लिए ये बॉडीज जो है अपना रोल ऐसा तरीके से अदा करें। हम ये समझते हैं कि मौजूदा जो अब जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं वो यकीनन इस लायक हैं कि वो इसको जो है ना अच्छे तरीके से अपने काम को वकला के किरदार को चाहते हैं कि वो बेंच के लिए वो बेहतर किरदार अदा करें। इस वक्त यहाँ ये इलेक्शन प्रोसेस भी जारी है, वकला की जानिब से इस हवाले से भरपूर अंदाज में ये बात की जा रही है कि वकला जो है वो जमहूरी अंदाज में इस इंतखाबी प्रोसेस को पूरा भी करते हैं और साथ ही साथ इसकी अहमियत पे भी बता रहे हैं। इनका सिलसिला जारी है। महमूद आपने अपडेट किया। अब बात करेंगे डॉलर के हवाले से। कमजोर रुपया तगड़ा होने का मुसलसल आज दूसरा रोज है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 28 पैसे सस्ता हो चुका है। डॉलर 172 रुपये 78 पैसे से कम होकर 171 रुपये 50 पैसे पर पहुंच चुका है। कमजोर रुपया तगड़ा होने का मुसलसल दूसरा दिन। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 28 पैसे सस्ता हो गया है। डॉलर 172 रुपये 78 पैसे से कम होकर 171 रुपये 50 पैसे का हो चुका है। आपको अपडेट कर रहे हैं डॉलर के बारे में। कमजोर रुपया तगड़ा होने लगा जबकि डॉलर की ऊंची उड़ान थमने लगी है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 28 पैसे सस्ता हो गया है, जिसके बाद डॉलर की नई कीमत 171 रुपये 50 पैसे हो चुकी है। कुछ बात करें कोविड की। जनूबी पंजाब में 24 घंटों के दौरान 12 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मुल्तान में 6 अफराद का टेस्ट पॉजिटिव आया। विहाड़ी में 3, खानेवाल 1 और रहीम यार खान में 2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जी आपको बताएं जनूबी पंजाब में 24 घंटों के दौरान 12 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। मुल्तान में 6 अफराद कोरोना पॉजिटिव करार पाए हैं। विहाड़ी में 3, खानेवाल में 1 कोरोना का शिकार हुआ, जबकि रहीम यार खान में भी 2 अफराद में कोरोना की तशखीस पाई गई है। दरिया सिंध में लैया करोड़ लाल एहसन के मुकाम पर कटाव नशेबी इलाके में दरियाए पानी ने तबाही मचा दी है। बस्ती ममदू टोटन समेत 11 बस्तियां दरियाबुर्द, जबकि हजारों एकड़ जरिए रास्ते पर खड़ी फसलें भी तबाह हो चुकी हैं। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस भी अफसरान को होश न दिला सका। मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुके हैं। आपको बताएंगे दरिया सिंध में लैया करोड़ लाल एहसन के मुकाम पर कटाव जारी है। नशेबी इलाकों में दरियाई पानी ने तबाही मचा दी है। बस्ती ममदू टोटन समेत 11 बस्तियां दरियाबुर्द हो चुकी हैं, जबकि हजारों एकड़ ज़रिए अराजी पर खड़ी फसलें भी तबाह हो चुकी हैं। लोगों को घरों में भी पानी दाखिल हो चुका है, जबकि यहां पर लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। खान में रीजन के 28 सब इंस्पेक्टर्स प्रमोट हो गए हैं। प्रमोशन पाने वाले इंस्पेक्टर्स में एक खातून इंस्पेक्टर भी शामिल है। मजीद बात करेंगे आशिर इशफाक से। जी आशिर। डीजी खान रीजन में भी 28 सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर प्रमोट हुए हैं और ख़ास तौर के ऊपर प्रमोट होने वाले इंस्पेक्टर्स के हवाले से पुलिस लाइन में तकरीब का इनेकाद किए गए हैं। RPO डेरा गाजी खान फैसल राना साहब ने यहाँ पर खसूसी शिरकत की है। बात करते हैं सर, आपने तमाम जो इंस्पेक्टर प्रमोट हुए हैं उनको मुबारकबाद भी दिया, बैजेस भी लगाए प्रमोशन, क्या कहना चाहेंगे सर? 28 इंस्पेक्टर हैं जो प्रमोट हुए हैं, जिनमें एक लेडी इंस्पेक्टर भी हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। मुझे खुशी है कि आपने लेडी इंस्पेक्टर का भी नाम लिया है, क्योंकि अक्सर ये तस्वर किया जाता है कि ख़वातीन को जो है वो बराबरी के हकूक़ नहीं मिलते। तो मैं बड़ा खुश हूँ आज कि हमारी एक पुलिस ऑफिसर जो खातून हैं वो भी प्रमोट हुई हैं, इंस्पेक्टर के ओहदे तक पहुँची हैं। और उसके अलावा 27 हमारे मेल इंस्पेक्टर्स हैं जो प्रमोट हुए हैं, नोटिफिकेशन उनका हो चुका है। और इनको मैंने यही अभी बातचीत इनसे करते हुए कहा है कि जिस तरह उनके रैंक में इजाफा हुआ है, इसी तरह उनकी जिम्मेदारियों में भी इजाफा हुआ है। और अब इतने रिस्पॉन्सिबल रैंक पे पहुंच के इनको चाहिए कि आवाम को इंसाफ मुहैया कराएं, आवाम के साथ अच्छा रवैया रखें और किसी किस्म की करप्शन जो है वो मुझे इनकी तरफ से नहीं मिलनी चाहिए।
जी बिल्कुल, आवाम को इंसाफ मिलना चाहिए और क्योंकि रैंक्स में भी इजाफा हुआ है तो जिम्मेदारियों में भी इजाफा हुआ है। ठीक है आशिर, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। मरकजी नायब सदर मुस्लिम लीग नून मोहतरमा मरियम नवाज की 48वीं यौम पैदाइश के मौके पर मुल्तान में पुलशवाला में कारकुनान की जानिब से केक भी काटा गया है। मजीद बात करेंगे वसीम शहजाद से। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मरकजी नायब सदर मुस्लिम लीग नून मोहतरमा मरियम नवाज के 48 यौम पैदाइश के मौके पर जो है वो कारकुनान की जानिब से केक जो है वो काटा जा रहा है। इस वक्त हमारे हमराही मौजूद है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? हम आज अपने लीडर को के जन्मदिन पर मुबारकबाद देना चाहते हैं और हमने अभी सेलिब्रेट किया है और उनको ऐसे हज़ारों जो है खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। मैं दुआ गो हूँ मरियम साहबा के लिए, अल्लाह ताला इनको हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह ताला इनको इतने सेहत अमानत के साथ रखे ताकि ये हमारी कौम की खिदमत कर सकें। आने वाला वक्त इंशाल्लाह मरियम नवाज साहिबा का होगा इंशाल्लाह। आने वाले वक्त मरियम नवाज साहिबा का होगा। क्या कहेंगे आप लीडर की सालगिरह के खुशी के मौके पर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मरियम नवाज साहिबा ने एक सियासत के अंदर नई रूह फूंकी है, जिस वजह से हम सब लोग उनके साथ जुड़े हैं। वो नौजवान नस्ल की लीडर हैं। उन्होंने हमें सिखाया है कि अगर मुल्क को आगे बढ़ाना है तो आइन और कानून की पासदारी करनी पड़ेगी और हम सबको अगर कोई चीज़ जोड़ सकती है तो वो आइन और कानून है। मरकजी नायब सदर मुस्लिम लीग नून मोहतरमा मरियम नवाज का 48वां यौम पैदाइश के मौके पर जो है वो यहाँ पर केक काटा गया और कारकुनान जो है वो उनकी दराजी उम्र। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। रहीम यार खान ने PTI के सूबाई अक़लियती रहनुमा मिस्टर चौहान को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस अक़लियती MPA मुंतखब करने का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मजीद बता रहे हैं आमिर भट्टी। रहीम यार खान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अक़लियती रहनुमा और PTI के जो रहनुमा है युडिस्टर चौहान, उनके MPशिप के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस वक्त जो PTI की ज़िली क़यादत है, जो रहनुमा है और उसके साथ साथ जो वर्कर्स हैं, इनके घर पहुंचे, इनकी रिहाइशगाह पे इस वक्त देख सकते हैं खुशी का एक समा है। सर क्या कहना चाहेंगे? अपनी ज़िली क़यादत डॉक्टर साहब आए हुए हैं, पूरा मुरीद साहब, बाजी नौशीन भी आई हुई हैं। इन सब जो मेरे इनकी क़यादत में लोग आए हुए हैं, मेरे भाई हैं, मेरे वर्कर हैं, मेरे साथी हैं। हर कदम पे ये मेरे साथ थे। हमने इलेक्शन कैंपेन में भी हिस्सा लिया, इमरान खान के विजन को आगे बढ़ाते हुए हमने कामयाबी भी हासिल की। आज अक़लियती बरादरी में आप देख रहे हैं खुशी की एक लहर है, बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी और क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी एक खुशी की लहर दौड़ी हुई है कि हमारे लोग निचली सतह से, साउथ के इलाके से, आप जानते हैं पसमानदा इलाकों से हमारी लीडरशिप को खान साहब ने स्पेशली ओब्लाइज किया है। और मैं कोशिश करूंगा अपने भाइयों के साथ मिलकर, स्पेशली जो है मेरे तमाम वर्कर्स मेरे लिए एक हैं और मैं भी इन्हीं के बीच में से हूं। हम इकट्ठी मेहनत करेंगे अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी मुल्क की तरक्की के लिए, मिलकर इमरान खान की क़यादत में इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। शुक्रगुजार हैं और इसके साथ साथ मिठाई खिलाई जा रही है, फूलों के हार पहनाया जा रहा है, मुबारकबाद। सही आमर, आपका शुक्रिया। मुल्तान में मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में सजा एक रोज़ा एडवेंचर डे। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए रियाद से जी अली। जी बिल्कुल, आज जो है एडवेंचर डे मनाया जा रहा है वो मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में। इस एडवेंचर डे की खास बात यह है कि आज के एडवेंचर डे में न सिर्फ लड़के बल्कि लड़कियां भी बढ़ चढ़ के मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लेकर अगर जिक्र किया जाए तो पहले यहाँ पर सुबह के वक्त मैराथन रेस हुई है जो लड़कों की थी, उसके बाद साइकिलिंग रेस हुई है जो कि लड़कियों की थी, उसके बाद रस्सा कशी के मुकाबले भी जारी है, इसके बाद टग ऑफ वार और जो ब्लाइंड ट्रेल है उसके मुख्तलिफ मुकाबले जारी हैं। तो जो स्टूडेंट्स है वो खास एंजॉय करते हैं। मेरे साथ जो मैराथन रेस में जो जीते वो मौजूद से पूछे क्या कहना चाहेंगे, मैराथन रेस आपने जीती है, कैसा लग रहा है? मैराथन रेस जीतने के बाद में बहुत अच्छा लग रहा है और ये एक पॉजिटिव एक्टिविटी है। ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए क्योंकि आजकल स्टूडेंट्स जो हैं ये सोशल मीडिया पे ज़्यादा फोकस करते हैं और जो रियल गेम है, फिजिकल गेम है, उन पे फोकस नहीं कर रहे। फिजिकल गेम में फोकस नहीं, तो मेरा कैमरा अगर आपको दिखाएगा पीछे जो मेरे अकब में अभी भी ये एडवेंचर डे की मुनासबत से जो है रस्सा कशी जा रही है जिसमें जो नौजवान है वो खूब मुकाबला ले रहे हैं और हिस्सा ले रहे हैं और जोर लगाया जा रहा है। आज की दिन खास बात यह है कि आज जो है मुकम्मल तौर पर एडवेंचर डे मनाया जा रहा है। तो कुछ और से बात क्या कहना चाहिए, एडवेंचर डे पे खुशी हो रही है? जी बहुत ज़्यादा खुशी है। आजकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा कम हो रही हैं। पिछला सीज़न कोरोना का था जिसकी वजह से हमारी मतलब ऑनलाइन क्लासेस थी, फिजिकल थी, हमारे ग्राउंड्स ऑफ थे टोटल। अब कोरोना का अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कोरोना खत्म हुआ है तो फिजिकल एक्टिविटीज स्टार्ट हुई हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है नेक्स्ट मंथ हमारा स्पोर्ट्स गाला भी है, बहुत इंजॉय गाला भी और खासा एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पर MNS एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, मोहम्मद नवाज यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में आज जो स्पोर्ट्स गाला के साथ साथ जो एक एडवेंचर डे जो मनाया आपने अपडेट किया।
खुशाब में तीसरा सालाना इंटरनेशनल नेज़ाबाजी टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत साहबजादा मोहम्मद अली सुल्तान ने की है। नेज़ाबाजी के इस खेल में मुल्क भर के मशहूर मारूफ घुड़सवारों ने शिरकत की है, जबकि खुशाब से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर तीसरा सालाना इंटरनेशनल नेज़ाबाजी टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत साहबजादा मोहम्मद अली सुल्तान ने की है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बहावलपुर के अहाते में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चौधरी अमीर मोहम्मद ने पौधा लगाया है, जबकि डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर इरफान अली काठिया भी उनके हमराह मौजूद थे। जी आपको बताएं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बहावलपुर के अहाते में पौधा लगाने की तकरीब का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चौधरी अमीर मोहम्मद ने पौधा लगाया। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर इरफान अली काठिया भी उनके हमराह थे। डिस्ट्रिक्ट सदर अख्तर अब्बास और जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब मुबारक की भी शिरकत। रोही न्यूज स्टूडियो से फल वक्त इतना।